Hello, everyone. So, prelims is around the corner. Less than 8-9 days are remaining for the prelims, and I hope that your revision is going on track. You are also taking care of your health, which is very, very important at this moment. You are taking adequate amount of sleep. So, in that direction, I am bringing out this video where we are going to cover the top 10 most important current affairs for the prelims 2026, जो कि इकोनॉमिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज रही है for the last 1 year. ठीक है, so we'll try to discuss the most important thing related with that news. So let us begin. So first news is related with RBI's revised liquidity management framework. So as you all know that who looks after the monetary policy in the country? So it is RBI, which looks after the monetary policy in the country. The government of India has adopted the flexible inflation targeting regime सिंस 2016. ठीक है, जहां पे हम एक इन्फ्लेशन टारगेट सेट करते हैं. Then we have the monetary policy committee, which decides the policy repo rate in order to keep the inflation within that zone. And in that case, कि अगर if monetary policy committee fails in its mandate, then RBI has to give a report to the government of India. So ये जो लिक्विडिटी मैनेज करती है आरबीआई, उसका आरबीआई ने एक रिवीजन किया था, रिवाइज्ड फ्रेमवर्क निकाला था somewhere around September 2025. So just to we need to look to that. So RBI in September 30, 2025 released the revised liquidity framework. So यहाँ पे what are the key points related with that liquidity management framework? So the few most important thing which you should remember is, first is that when RBI tries to manage the liquidity, okay, so what is the operating target for the monetary policy? So that is weighted average call rate. Weighted average call rate, the rate at which the bank transfer funds for overnight among themselves. That is called as weighted average call rate. So the operating target for the monetary policy is weighted average call rate. That is the first thing. Second thing is that policy corridor. So when we talk about flexible inflation targeting regime, so we want to keep the inflation within a target. इन्फ्लेशन टारगेट की बात करते हैं, एक पॉलिसी कॉरिडोर की बात करते हैं. सो व्हाट इज दैट पॉलिसी कॉरिडोर? सो in this corridor we have repo rate at the middle. At the center क्या रहता है? Repo rate. All right. And at the top of this corridor, what is there? Marginal standing facility. तो ये floor of the corridor, sorry, top or you can say ceiling of the corridor बोलते हैं इसको. All right. Top of the corridor, ceiling of the corridor, upper bound क्या है? वो marginal standing facility बोलते हैं. And लोअर बाउंड पे क्या है? फ्लोर पे क्या है? एट द बॉटम पे क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी. टू थिंग्स इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, दिस इज अ सिमेट्रिक पॉलिसी कॉरिडोर. ठीक है, तो एमएसएफ की वैल्यू यहां पे क्या होती है? इट इज लिंक्ड विथ रेपो रेट, दैट इज 0.25% प्लस रेपो रेट. ठीक है, तो रेपो रेट प्लस 0.25%. That is, this width is 0.25%. Similarly, SDF क्या होता है? It is repo rate minus 0.25%. All right, so this is the lower bound and MSF is the upper bound. So ये policy corridor है, that is what RBI is maintaining. This is symmetric policy corridor. Earlier थोड़ा सा no, we have asymmetric, but अभी क्या है?
सिमेट्रिक कॉरिडोर है, पॉलिसी कॉरिडोर है. रिमेंबर दैट रेपो रेट इज एट द मिडल, एमएसएफ इज एट द टॉप and SDF is at the bottom. Do not confuse it. Earlier it was reverse repo rate. तो अब उससे कंफ्यूज नहीं होना है. SDF has replaced reverse repo rate at the lower bound or at the floor of policy corridor. Another important thing is that the alignment, what RBI tries to do with the policy rate. ठीक है, तो यहां पे when we say that RBI is targeting weighted average call rate, all right, for the monetary policy, what it wants to do, it wants to maintain WACR as close as to repo rate. See, all right. So WACR should be aligning with repo rate. That is what it is trying to do. Weighted average call rate needs to be aligned with repo rate. That is what RBI is trying to do in case of liquidity management framework. ठीक है, तो WACR needs to be aligned with repo rate. बहुत पास होना चाहिए, बहुत क्लोज होना चाहिए repo rate के. Next is, what is the main tool to manage the short term liquidity? तो ये भी एक important है. Now it has the main tool which is now being used is 7-day variable rate repo or variable rate reverse repo. So 7 days variable rate repo or 7 days variable rate reverse repo. That is the main tool which is now being used to manage the short term liquidity. Earlier it was 14-day. Earlier, it was 14-day variable rate repo and variable rate reverse repo. Now, RBI has revised it to 7-day variable rate repo and variable rate reverse repo. So, this is also very important. And the main tool to manage this is long-term liquidity. Just one thing you should remember, this is long-term. All right. Main tool to manage long-term liquidity is what? Open market operation, long-term variable rate repo and reverse repo rate operations, and forex swap auctions. These are the few instruments which RBI is using to manage the long-term liquidity. Manage the long-term liquidity. Open market operation हो गया, forex swap auctions हो गया, and वेरिएबल रेट रिपो एंड वेरिएबल रेट रिवर्स रिपो टेन्योर क्या हो जाएगा 14 days to 1 year. ठीक है, तो ये यूज कर रहे हैं टू मैनेज द लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी. So these are some of the tools which RBI is using to manage short term transient या frictional liquidity or to manage the long term or durable liquidity. ठीक है, तो वेरिएबल रेट रेपो और वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ओवरनाइट टू फोर्टनाइट 2 week का जो ड्यूरेशन है दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर managing the short term liquidity. Standing deposit facility, marginal standing facility, and forex swaps. These are the instrument which are being used to manage the short term liquidity. But yahin pe, what is the main operating tool to manage the short term liquidity? That is 7-day variable rate repo or 7-day variable rate reverse repo. Similarly, instrument which RBI is using to manage the long term liquidity, durable liquidity, वो क्या क्या है? That is long term variable rate repo, that is beyond a fortnight, 14 days and beyond. Long term variable rate reverse repo, 14 days and beyond. Forex swap auctions and open market operations. तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, फॉरेक्स स्वैप ऑप्शंस है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ये बात हो रहा है. सिंपली फॉरेक्स स्वैप है, ऑलराइट, दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी. तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा. दिस इज a very important thing which you should know about how RBI tries to manage the liquidity. Next, which we are going to see is Payment Regulatory Board. तो ये बोर्ड फॉर्म किया हुआ था. As you all know that as per the payment and settlement system,
Payment and Settlement System Act 2007. What is the institution or which institutions regulates the payment and settlement system in the country? So ये एक्ट जो है आरबीआई को ऑथराइज करता है that RBI will act as a regulator for payment and settlement system in the country, meaning that if any entity wants to act as a payments gateway या payment system के लिए कुछ करना चाहती है, payment gateway बनना चाहती है, all right, तो they has to take the prior approval from the RBI. That is a important thing which you have to see. And in order to do its activity, तो आरबीआई एक बोर्ड फॉर्म कर देता है, दैट इज व्हाट पेमेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड फॉर्म किया है टू लुक आफ्टर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन द कंट्री. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज द आइडिया? द आरबीआई हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द पेमेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड under Payment and Settlement System Act 2007. All right. It will replace the earlier Board for Regulation and Supervision of Payment and Settlement System BPSS. ठीक है, तो ये किसको रिप्लेस कर रहा है? अर्लियर कौन सा कमिटी फॉर्म थी? बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, दैट इज बीपीएसएस फॉर्म थी, विच वाज लुकिंग आफ्टर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. इसी को रीऑर्गेनाइज कर दिया है एंड पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड फॉर्म कर दिया है. तो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड इज सक्सीडिंग द बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बीपीएसएस. ठीक है, so what are the some salient thing which you should know? That first, it has been formed under the Payment and Settlement Act 2007, and the mandate is to oversee the functioning of payment system in the country. It comprises of 6 members, all right, similar to the Monetary Policy Committee. तो यहाँ पे भी 3 RBI members हैं and 3 government nominee हैं. Who is the chairman here? RBI governor, then deputy governor of the Reserve Bank, who is in charge of payment and settlement system. That is, that person is also part of the board. And the third person is officer, one of the officers of RBI, who has been nominated by the Central Board of Reserve Bank. So these are the 3 persons from the RBI side. And then +3 government nominee, all right, who will be nominated by the central government, and they may be expert in payment system, IT, cyber security or law. ठीक है, जो गवर्नमेंट नॉमिनी होंगे, they will have a tenure for 4 years and they are not eligible for re-nomination. तो very similar to मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो वहां पे होता है. Alright. मीटिंग की बात करें तो दे आर मैंडेटेड टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर. ऑलराइट, कमेंट में करके बताइए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की क्या मैंडेट है, हाउ मच टाइम दे शुड एट लीस्ट मीट इन अ ईयर, कमेंट में करके बताएंगे. सिमिलरली कोरम की अगर हम बात करें तो कोरम इज 3 मेंबर्स और उसमें इंक्लूजन किसका होना चाहिए? आइदर चेयरपर्सन, अगर चेयरपर्सन नहीं है तो डिप्टी गवर्नर इन द एब्सेंस ऑफ चेयरपर्सन, एंड the one of the nominated member by the government. तो ये मिनिमम होना चाहिए. Decision making, it is based on majority of the votes. Majority of the votes, chairperson have the casting vote in the thing. If there is a tie, then chairperson will have the chance of second voting. ठीक है, तो ये casting vote का मतलब यही होता है कि if there is a tie, then the chairperson will have a second vote. All right, you can provide a second vote. Always remember that it does not mean that chairperson has veto power. Similar to मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जहां पे आरबीआई गवर्नर और चेयरपर्सन डज नॉट एंजॉय द वीटो पावर, ही ओनली एंजॉयज द कास्टिंग वोट. सिमिलरली यहाँ पे भी है. तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. Next important news is that RBI has issued some liberalized ECB guidelines, external commercial borrowing. External, all right, commercial
borrowings. So it allows the regulated entities in India to get loans from the uh, outside. ठीक है, external commercial borrowings which is regulated by Reserve Bank of India. Alright, तो इंडिया में RBI has allowed certain companies, certain entities to get loans from the outside countries. ठीक है, वो सारा कुछ कौन रेगुलेट करता है? RBI. And very recently RBI has released the liberalized ECB guidelines. जब आप एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स की बात करते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट विच हैज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, तो ईसीबी इज पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट. ठीक है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग इज पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स. It allows the Indian companies to get loans from outside. Usually it is at much lower interest rate. ठीक है, करेंसी डेप्रिसिएशन का भी रहता है बट ओवरऑल इट इज मच lower interest rate than what is prevailing in the country. ठीक है, फॉरेन लोन्स की बात यहां पे कर रहे हैं. सम ऑफ द लिबरलाइज गाइडलाइंस क्या क्या चीज बात की है? पहला चीज जो एलिजिबल बोरोवर है, वन ऑफ द की थिंग्स विच यू शुड अंडरस्टैंड इज दैट वो चीज ब्रॉडेंड हो गई है. नो, the liberalized guideline which has been issued by the RBI related to ECB has broadened the pool of eligible investors. बढ़ा दिया है. Alright, यहाँ पे क्या है? As borrowers no longer need to be entities eligible to receive FDI. तो वो pool बड़ा हो गया. एक ही बात समझ में आ जानी. दूसरी, रिकॉग्नाइज लेंडर. ठीक है, तो एक यहाँ पे अर्लियर रिक्वायरमेंट रहती थी कि आप वही रिकॉग्नाइज लेंडर से ले सकते हैं. ऑलराइट, जो FATF या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन के कंप्लायंट है. FATF कंप्लायंट है या IOSCO कंप्लायंट है. अब ये रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा हटा दिया गया है. ये हटा दिया गया है तो यू कैन गो एंड टेक फ्रॉम अदर एंटिटीज विच आर नॉट कंप्लायंट. तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है कि रिकॉग्नाइज लेंडर में ये चीज को रिमूव कर दिया गया है. मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड क्या है? तो ये स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है 3 इयर्स का. तो ऑल एलिजिबल बोरोवर्स शैल रेज ECB विथ मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 इयर्स. तो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड एक स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है फॉर 3 year for majority of the borrowers. Another important thing which we have been done is that borrowing limits थोड़ा सा increase कर दिया गया कि higher borrowing limit है. वो limit क्या है? That is up to $1 billion you can take, or total outstanding borrowing, that is external and domestic, up to 300% of net worth. ठीक है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग आपकी क्या हो जाएगी? दैट इंक्लूड्स बोथ डोमेस्टिक बोरोइंग एंड एक्सटर्नल बोरोइंग अप टू 300% ऑफ योर नेट वर्थ. तो ये दो चीज ध्यान रखेंगे कि अप टू $1 billion और अप टू 300% ऑफ द नेट वर्थ, ये बोरोइंग लिमिट लिबरलाइज्ड कर दी गई है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज करेंसी कन्वर्जन. तो एक चीज ध्यान रखिए कि इफ इंडियन कंपनी is adopting the ECB route, तो they can take loan, जो फॉरेन से लोन ले रही है, either in foreign currency or in Indian rupee. तो ये दो चीज हो गई कि they can either take ECB loans in foreign currency or Indian rupees, and then currency conversion can happen. कि for example you have taken loan in foreign currency. ठीक है, तो currency of such borrowing may be changed from one foreign currency to another foreign currency. कि आपने for example let us say येन में लिया था and you want to convert it into dollar, one foreign currency into another foreign currency, foreign currency into INR ये भी permitted है, and INR to foreign currency ये भी अब permit हो गया है, earlier नहीं था. तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखिए व्हेन यू टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स. ठीक है, इफ यू सी द
patterns of the way UPSC has asked questions in the prelims, if you last few years, so external sector is one of the very important topic with regard to UPSC prelims, और उसमें external commercial borrowings आता है. So this news is quite important, quite significant. Next important news is that Delhi government has signed MOU with the Reserve Bank of India to manage borrowings and cash flows. Okay. Now you know that one of the key functions of the RBI, all right, is to act as debt manager, all right, or to act as banker to the government. Banker to the government. Right? To act as a banker to the government. In case of central government, RBI has the right and obligation to act as a uh, banker to the central government. ठीक है, वहां पे ऑटोमेटिकली हो जाता है कि आरबीआई विल एक्ट एज ए banker to the central government. But in case of state government or UTs, ठीक है, RBI will only act as a banker to the government after signing a agreement with the state government or the UTs. ठीक है, तो banker to the government, central government में you can understand that RBI has the right and obligation that automatically it is becoming the banker to the central government. But in case of state government or UT, the state government needs to undertake a agreement, all right, with the RBI to oversee the or to over no so that RBI can act as a banker to the government कि आपका पेमेंट कितना आ रहा है वो हम देख सकते हैं, आपको रिसीट कितना आ रहा है, what payment you need to make, all right, if you have say, any excess surplus cash, how it can be invested, आपको borrowings लेनी है, how it can be done, market borrowing etc. ये सारी चीजें RBI is acting as the banker to the government. तो वही हुआ है कि Delhi government has now signed an MOU or agreement with the RBI to manage the borrowing and cash flow. That is, RBI will act as a banker to the Delhi government. ठीक है, तो Delhi government has now signed a memorandum of understanding with the RBI to enhance financial governance and fiscal management for the national capital territory of Delhi. ठीक है, so RBI will now, since this framework has been signed, so the RBI will act as a banker, as a debt manager, as a financial agent of the government, and it will enable the market borrowing. It will enable the market borrowing through state development loans, SDL. All right, GSEC may already talked when we're talking about the top 50 economic terms. We have talked about GSEC, and one of the important thing is SDL is long-term bonds released by state government. उसको बोलते हैं SDL. When long-term bonds released by central government, dated securities. तो enabling capital market or sorry enabling market borrowings through state development loans. अभी तक वो अदर टाइप पे डिपेंडेंट थे, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा था. एसडीएल में इंटरेस्ट रेट कम रहता है. Automatic investment of surplus cash balances, access to low cost liquidity facilities, and professional cash management. Since RBI will now act as a banker to the Delhi government, तो ये सारी चीजें अब RBI करेगा. ठीक है, another also one of the important thing is Delhi will now gain access to RBI's ways and means advances, all right, and also स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज जो हमने बात की थी टॉप 50 की इकोनॉमिक टर्म्स में, ये सारी चीजें. ठीक है, तो अब दिल्ली विल आल्सो गेन द एक्सेस टू आरबीआई का वेज एंड मींस एडवांसेस टू ओवरकम एनी मिसमैच इन द पेमेंट एंड रिसीट. तो वहां से वेज एंड मींस एडवांसेस हो जाएगा. ठीक है, another is for the first time in its history the capital will be able to raise funds to state development loans. ठीक है, तो ये कुछ चीजें ध्यान रखिए with regard to the
no, state RBI acting as a banker to the government. That becomes very important. All right. What are the key functions? ये पूछ भी चुका है and can further asked related to it. कि RBI has become the banker to the Delhi government. Now, what are the some of the functions RBI is going to perform? ठीक है. So this is very important. Again, government notifies flexible inflation target. So as we have seen that in 2016, government ने क्या किया था? Government adopted flexible inflation target regime, all right, as an monetary policy objective. अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? पहला, what is the objective of monetary policy? Objective of monetary policy. So objective of monetary policy is price control. Price control, that is inflation control, keeping economic growth in the mind. All right. तो एक ये चीज है. दूसरी चीज है when the objective is price control, so how it is being done? So flexible inflation target. All right. Flexible inflation target. So under flexible inflation target regime, we are having a flexible inflation target, okay, which is announced by the central government in consultation with RBI. Announce कौन करता है? Central government. किससे consult करता है? RBI से. Flexible inflation targeting कि upper band होगा और lower band होगा. तो वो अभी announce कर दिया है 4 ± 2%. That is lower band is 2% and upper band is 6%. ये इन्फ्लेशन टारगेट में रखना है आपको इन्फ्लेशन. एंड व्हाट इज दैट इन्फ्लेशन? किस इन्फ्लेशन की बात हो रही है यहाँ पे? WPI, CPI और CPI में जो डिफरेंट वेरिएंट्स आर देयर. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज CPI combined. This is what the 4 ± 2% is CPI combined. And third is that which authority will determine policy repo rate in order to keep the inflation within this target zone. तो उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हैज बीन फॉर्म्ड. तो ये क्या डिटरमिन करती है? पॉलिसी रेपो रेट. पॉलिसी रेपो रेट. एक चीज ध्यान रखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ओनली डिटरमिन्स पॉलिसी रेपो रेट और या फिर मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्टेंस क्या होगा. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस क्या होगा, यही दो चीज डिटरमिन करती है. ऑलराइट, उसके सारी चीजें अलावा आरबीआई डिटरमिन करती है. सीआरआर कितना होगा, एसएलआर कितना होगा, नो पॉलिसी कॉरिडोर सिमेट्रिक होगा, एसिमेट्रिक होगा, एमएसएफ विल बी 0.25% और 0. वो सारी चीज आरबीआई डिटरमिन करता है. बट इनको ये है कि नो पॉलिसी रेपो रेट एंड द इंस्टेंस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा, ये डिटरमिन करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. तो पॉलिसी रेपो रेट कौन डिटरमिन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. एंड उसको ऐसा डिटरमिन करती है टू कीप द इन्फ्लेशन विद इन दिस टारगेट जोन, दैट इज 2% से 6%. एंड जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है कि इट व्हाट विल बी नो कॉज्ड एज फेल्योर ऑफ एमपीसी. फेल्योर कब हो जाएगा? तो फेल्योर इज व्हेन फॉर कंसेक्यूटिव 9 months inflation is not within this band, तब फेल्योर हो जाएगा फॉर 9 consecutive month. ठीक है, either it is below the 2% target और it is above the 6% target, तो फेल्योर माना जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का. क्या सिंस 2016 till today is there any instance of failure of monetary policy committee? तो yes. So, one time they has failed in this mandate कि when the inflation was for the 9 months January से September तक it was greater than 6%. तो only there has been a single instance जब वो फेल हो गए थे since its inception. ठीक है, तो जब आप फेल कर जाते हो तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज रिमेंबर करिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी फेल्स इन इट्स मैंडेट, बट गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट जाती है. वो कौन भेजता है? आरबीआई भेजती है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी भेजती है. तो ये ध्यान रखिएगा. ठीक है,
सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है। तो यही जो मेन न्यूज है कि फॉर द पीरियड ऑफ 2026 एंड 2031 फॉर 5 years जो अनाउंस करती है गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट दैट हैज बीन अनाउंस्ड एज 4 ± 2%। ठीक है, तो 2016 से चल रहा था, 2016 से 2021, ठीक है, फॉर दैट ऑल्सो 4 ± 2% था। देन 2021 से 2026 इसके लिए भी 4 ± 2% था। एंड नाउ द थर्ड नो टाइम 2026 टू 2031 ये जो टाइम है इसके लिए भी 4 ± 2% हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इज द रिविजन ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड टू बी वेरी प्रिसाइज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन फरवरी हैव रिलीज द रिवाइज्ड जीडीपी नंबर्स। तो वहां पे कुछ रिवीजन किए गए थे जीडीपी रिलेटेड, that becomes very important for the prelims examination. So first thing what government has done in case of GDP revision was the base year has been revised. Okay, base year has been revised. The new base year is 2022-23, while the earlier base year was 2011 to 12. ठीक है, तो बेस ईयर हैज बीन चेंज्ड। तो बेस ईयर बेसिकली रिफ्लेक्ट्स की व्हाट आर द थिंग्स वी आर टेकिंग इन आवर नो थिंग्स थ्रू विच वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट कि लेटेस्ट में क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो बेस ईयर रिवीजन एज पर द norms, it should be revised every 5 years to closely reflect the spending pattern of the country, to closely reflect कि what people are consuming. ठीक है, तो बेस ईयर रिवीजन एक नॉर्मल एक्सरसाइज है जो एवरी 5 years हो जानी चाहिए। Another important thing is there has been certain changes in how the GDP will be determined. तो पहला था यूज ऑफ डबल डिफ्लेशन मेथड नाउ। ठीक है, तो व्हाट वी कॉल, जब हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर इट इज नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट द करंट ईयर करंट प्राइसेस, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। So how it is done practically? So government tries to calculate the nominal GDP through the surveys, through the numbers, etc. तो ये एक they try to calculate through the field service, ठीक है, nominal GDP, and then they also calculate the GDP deflator. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉमिनल जीडीपी आ गया, लेट अस से 10%, 10% इज द नॉमिनल जीडीपी, इट हैज बीन कैलकुलेटेड। नाउ जीडीपी डिफ्लेटर का नंबर आ गया बिकॉज इट इज प्राइस राइज, राइट, इट इज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, लेट अस से इट इज 4%। सो व्हाट वी से रियल जीडीपी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6%, राइट, 6% इज द रियल जीडीपी बिकॉज 4% इज इन्फ्लेशन। नॉमिनल जीडीपी क्या है 10%, so real GDP will come as 6%. Now remember earlier what used to be in case of GDP deflator, we were using the single deflator. तो एक ही डिफ्लेटर का नंबर यूज होता था to deflate input prices as well as output prices, right? Which was not very suitable because international practice क्या है कि आप इनपुट प्राइसेस को इनपुट डिफ्लेटर से डिफ्लेट करेंगे एंड आउटपुट प्राइसेस को आउटपुट डिफ्लेटर से डिफ्लेट करेंगे। तो इंटरनेशनल प्रैक्टिस इज यूज ऑफ डबल डिफ्लेशन। ठीक है, अर्लियर डबल डिफ्लेशन इंडिया में वाज ओनली यूज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ double deflation it will be used as well agriculture sector as well as manufacturing sector. So ये GDP numbers को more robust and more authentic बना देगा। That is what कि use of double deflation, use of double deflation. Now agriculture sector as well as the manufacturing sector
both will be using the double deflation. That has been one very important change. Another is lower discrepancy through supply use table. तो what do you mean by discrepancy? Discrepancy से आप क्या समझते हैं? Alright. So GDP may be calculated or is calculated via three important methods: product method, income method, and expenditure method. If you talk about India, the principal method which is used by Ministry of Statistics and Program Implementation, कौन सा मुख्य method या main method use करता है MOSPI? So that is product method और value added method. ठीक है, ये मेन मेथड है. और ऑल्सो इंडिया में जीडीपी इज कैलकुलेटेड वाया एक्सपेंडिचर मेथड, बट द मेन मेथड इज, अगर कुछ भी चीज होती है तो द मेन मेथड विच इज यूज्ड इज वैल्यू एडेड मेथड और द प्रोडक्ट मेथड. ठीक है, तो डिस्क्रिपेंसी की हम बात करते हैं, यूजली इन तीनों मेथड से जीडीपी नंबर शुड कम सेम. ऑलराइट, बट इन प्रैक्टिकलिटी ऐसा नहीं होता है. कई बार डेटा मिसिंग है, डेटा टाइम पे नहीं आ पाए हैं, कुछ चीजें मिसिंग हो गई हैं, डेटा अभी नहीं मिल पाया है, तो देयर इज सम डिफरेंसेस. उसी डिफरेंसेस को बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी. तो हाउ डू वी कैलकुलेट डिस्क्रिपेंसी? जीडीपी फ्रॉम वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, या आप कहीं पे इनकम मेथड से भी निकाल रहे हैं, माइनस जीडीपी कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं discrepancy. तो earlier what we have seen is discrepancy has been a important part of the GDP calculation. तो कई बार जैसे आप देखिए, जीडीपी प्रोडक्ट मेथड से मान लीजिए आप 100 रुपीज का आपने प्रोडक्शन कर दिया. ठीक है, प्रोडक्शन इज 100 रुपी, बट जब आप एक्सपेंडिचर देखने आ रहे हैं तो यू आर ओनली एबल टू कैलकुलेट कि 97 रुपीज का ही एक्सपेंडिचर हो रहा है. तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी ऐड कर देते हैं एक्सपेंडिचर साइड में, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज 3 रुपीज की डिस्क्रिपेंसी है. तो कई बार no, there has been several instances where discrepancy is a large number as a proportional of GDP. ठीक है, तो उसी को कम करने के लिए and to make GDP more robust, what we are now trying to see that in order to lower the GDP, discrepancy, now we are using the international standard practice, that is supply use table, which will ensure that whatever is produced will be matching that how it is going to be used. तो इस टेबल में सारा कुछ हमें दिख जाएगा कि if something is produced, तो where it is going to be used. तो उस केस में this difference will be lesser and we will say that discrepancy is now lower. ठीक है, तो lower discrepancy through use of supply use table. Another important source is that we will now be using the more data sources. ठीक है, तो ई वाहन का डेटा है, जीएसटी पोर्टल का डेटा है, पब्लिक मैनेजमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज पीएमएफएस का डेटा है. तो बहुत से न्यू डेटा सोर्सेज वी आर गोइंग टू यूज सो दैट जो नंबर्स जीडीपी के आ रहे हैं दे आर मोर रोबस्ट, दे आर मोर कंक्रीट. ऑलराइट, एंड वो जो हमने क्वार्टरली एंड ईयरली जीडीपी निकाल रहे हैं, दे आर वेरी क्लोज इन नंबर. Then improved coverage of informal sector using annual survey data. तो एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि earlier what used to do, जो informal sectors है which comprises of unincorporated industries. ठीक है, अपने घर में कुछ बना रहे हैं आप, गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं रखा है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है, तो इनफॉर्मल सेक्टर की जो बात कर रहे हैं. तो अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन कि जो हम इनफॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन निकालते थे तो कोई फील्ड सर्वे नहीं होता था. इट वाज सिंपली बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट मेथड कि ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का हमने सर्वे से निकाल लिया है, लेट अस 0.6% से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.9% से मल्टीप्लाई कर दिया, सिमिलर मान लिया. उस तरीके से हम इनफॉर्मल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन निकालते थे. कोई ग्राउंड पे रियल सर्वे नहीं करते थे. इनडायरेक्ट मेथड और एक्स्ट्रापोलेशन से हम कंट्रीब्यूशन निकालते थे इनफॉर्मल सेक्टर का. बट दैट हैज नाउ बीन चेंज्ड. ठीक है, अब वी विल ट्राई टू असर्टेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर. कैसे? थ्रू द यूज ऑफ ग्राउंड डेटा या सर्वे डेटा. राइट,
एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइज जो एनुअली होगी, एज वेल एज डेटा फ्रॉम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इन सर्वे का यूज करके जो कवरेज है इनफॉर्मल सेक्टर, बिकॉज इफ यू सी द इंडियन इकोनॉमी, तो मोर देन 90% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज इनफॉर्मल सेक्टर, कंप्राइजिंग ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, तो उसका contribution to GDP ascertain करना is very important. तो अब right now what we will do is that will be based on direct method, that is through the use of survey. Alright, तो वहां पे annual survey of unincorporated sector enterprises and periodic labor force survey use करेंगे. ठीक है, so these are some of the most important things which you should remember about GDP. तो GDP as a topic has become very important इस बार के prelims के लिए. तो entire दो basic thing, static part, ये सारा अच्छे से करके जाइएगा. Another no base year changes or another revision जो आप बोल सकते हैं, that has been done in the CPI. Alright, CPI. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, स्पेशली द इसमें कौन सा वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं? सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन एंड सीपीआई कंबाइंड. इसमें कुछ चेंजेस लाए हैं, इनको रिवाइज्ड किए गए हैं सरकार ने. ऑलराइट, तो यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं, व्हाट आर द सर्टेन चेंजेस? सो जब आप बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ऑलराइट, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, तो यू कैन मेजर इट एट प्रोड्यूसर लेवल, जिसको हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं. यू कैन मेजर इट एज ए होलसेल लेवल, एट ए होलसेल लेवल जहां पे बल्क सेल एंड परचेज होता है, उसको हम WPI बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स. एंड यू कैन मेजर द इन्फ्लेशन एट द कंज्यूमर लेवल, जहां मार्केट में फाइनली कंज्यूमर को सामान बेचा जा रहा है, रिटेल लेवल पे जो बेचा जा रहा है. ऑलराइट, तो अनु रिटेल लेवल, ऑलराइट, वेयर एंड कंज्यूमर इज नाउ बाइंग द थिंग्स. ठीक है, तो वहां पे क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीआई रिलीज किए जाते हैं. ऑलराइट, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर, इंडस्ट्रियल वर्कर एंड सीपीआई रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड. तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं, रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड की. तो यहाँ पे जो कुछ चेंजेस हो गए हैं, एक बार उसको देख लेंगे. तो बेस ईयर हैज बीन रिवाइज्ड. ऑलराइट, तो बेस ईयर में हमेशा ये आइडिया रहता है, इट शुड बी वेरी क्लोज टू द करंट ईयर और द प्रेजेंट ईयर, सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पीपल. ठीक है, तो अर्लियर क्या था? 2012 था, एंड नाउ इट हैज बीन चेंज टू कैलेंडर ईयर 2024. तो पहला चेंज तो ये है. सिमिलरली जब आप सीपीआई क्या है? इट इज बेस्ड ऑन प्राइस चेंज इन बास्केट ऑफ गुड्स. ऑलराइट, तो बास्केट ऑफ गुड्स में आपने कुछ गुड्स रख लिया, अब उस पे वेट्स देना है कि जिसका कंजम्पशन ज्यादा उसका वेटेज ज्यादा. तो वो जो वेटेज देना है वो किस पैटर्न पे है? अर्लियर इट वाज बेस्ड ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2011-12. नाउ इट हैज बीन चेंज, वेटेज हैज बीन चेंज दैट HCES 2023-24 पे. सिमिलरली जो मार्केट कवरेज है, रूरल मार्केट एंड अर्बन मार्केट, वो दोनों इंक्रीज कर दिए गए हैं. नंबर्स हैज बीन इंक्रीज्ड एज यू कैन सी. ये ध्यान रखेंगे. आइटम्स कवर्ड इन द बास्केट, नाउ इट इज 299, अर्लियर था इट इज 358 राइट नाउ. सो गुड्स आइटम, सर्विसेज आइटम, CPI इंक्लूड सर्विसेज, WPI डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज. कमेंट में बताइए वेदर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इंक्लूड सर्विसेज और नॉट. ठीक है, तो 299 अभी थे, 358 अभी अब हो गए हैं. गुड्स आइटम ये भी इंक्रीज हो गया है, सर्विसेज आइटम ये भी इंक्रीज हो गया है. और ध्यान रखिए कि ऑनलाइन मार्केट अर्लियर नहीं था, बट यहाँ पे ऑनलाइन मार्केट अब हो गया है, उसकी भी प्राइसेस हम ट्रैक कर रहे हैं, बिकॉज लॉट ऑफ चेंजेस, पीपल आर कंज्यूमिंग OTT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटसेट्रा, तो लॉट ऑफ चेंजेस हैज कम. ई मार्केट डिलीवरी, वो सारी चीजें आ गई हैं. तो दैट इज वाई ऑनलाइन मार्केट इज ऑल्सो देयर. देन अनदर इंपॉर्टेंट चेंज जो है कि अर्लियर टू कैलकुलेट द CPI 6 कैटेगरी में डिवाइडेड था. नाउ इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 12 मेन डिविजन्स. ठीक है, अर्लियर 6 कैटेगरी था एंड नाउ 12 डिवीजन हो गया है. एंड दिस क्लासिफिकेशन अर्लियर वाज बेस्ड ऑन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स
in line with classification of individual consumption according to purpose 1999, और ये चेंज होके अब लेटेस्ट जो है 2018 के बेसिस पे दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट जो चेंज हुआ है, अर्लियर व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीपीआई रूरल अर्बन एंड कंबाइंड, तो सीपीआई रूरल में हाउसिंग सेक्टर का इंडेक्स नहीं लेते थे, हाउसिंग रेंट वाज नॉट इंक्लूडेड when we are talking about the CPI rural earlier, it was only included in CPI urban, but अब वो चेंज कर दिया गया है, तो अर्बन प्लस रूरल के लिए बोथ हम अब हाउस रेंट इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। And another one of the most important changes which has been done in this case is that food and beverages का जो total weightage था in the CPI, that has now come down to 36.75%. All right. So there is a law which says that, all right, कि as the person's income increases, so his or her expenditure on the food as a percentage of income decreases. तो कमेंट में करके बताएंगे कि वो कौन सा लॉ है। दैट लॉ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। ठीक है, तो नो दैट इज व्हाई कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है तो एक्सपेंडिचर ऑन फूड आइटम्स एज ए परसेंटेज ऑफ इनकम डिक्रीज कर जाता है। ऑलराइट, यू स्टार्ट स्पेंडिंग मेजर अमाउंट्स ऑन अदर आइटम्स, लग्जरी आइटम एटसेट्रा। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो बेस ईयर हैज बीन रिवाइज, 12 डिवीजन आ गए हैं, रिलीज ऑफ ऑल इंडिया एंड स्टेट लेवल आइटम इंडिसेस फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड सेक्टर्स। कुछ न्यू एडिशंस हुए हैं जैसे रूरल हाउसिंग, ऑनलाइन मीडिया सर्विस प्रोवाइडर, स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइडर। नाउ पीपल आर मोर एंजॉइंग, नो डिश टीवी से ज्यादा पीपल आर एंजॉइंग द ओटीटी सर्विसेज, I know Hotstar, etc. Value added dairy products, barley and its products, pen drive, external hard disk, attendants, babysitter, exercise equipment, ये सारे new additions हो गए हैं बास्केट में जो आप बात कर रहे हैं। एंड सम ऑफ द आइटम्स विच हैज बीन रिमूव, जो रिडंडेंट हो गए, जो अब यूज नहीं कर रहे, जिसपे पीपल अब खर्च नहीं कर रहे, पीपल आर नॉट कंज्यूमिंग दीज आइटम्स, तो उसको रखने का कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल VCR, VCD, DVD, हार्डली कोई ऐसे लगता है। देर आर स्ट्रीमिंग सर्विसेज, OTT सर्विसेज, तो वो सारी चीज यूज कर रहे हैं, शायद ही कोई यूज कर रहा है। राइट, हायरिंग चार्जेस, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, क्लोथिंग सेकेंड हैंड, CD, DVD, ऑडियो वीडियो कैसेट एंड कॉयर एंड रोप। तो सिंस बहुत ही मिनिमल कंजम्पशन है इन सब चीजों का, तो ये बास्केट से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर न्यू सीपीआई सीरीज की बात करें तो दिस इज व्हाट द आइडिया, जब हम बात कर रहे हैं कि 12 डिवीजन में न्यू सीपीआई सीरीज आई है। अगेन रिमेंबर दैट फूड एंड बेवरेजेस सबसे ज्यादा इसका वेटेज है स्टिल 36.75%। सेकेंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा वेटेड है दैट इज हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर फ्यूल्स का है, सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे है। ठीक है, and if you see third number पे, if you want to see, the transport is at third number, तो ये टॉप 3 देख लेंगे। और एक और ध्यान रखिए कि बॉटम पे लीस्ट वेटेज किसका है, दैट इज रिक्रिएशन, स्पोर्ट एंड कल्चर, 1.52%। तो ये कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखिए व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द रिवाइज्ड सीपीआई सीरीज और न्यू सीपीआई सीरीज। अनदर थिंग जो लास्ट few months you might have seen that ki continuously it has been in the news, it is breaching new marks every day. Okay, it has breached the 96 rupees also. ठीक है, तो depreciation of rupee, so this has been in very much in the news for the last 4, 5, 6 months। आप देखोगे कि no, there has been a depreciation of rupee vis-a-vis dollars। तो अभी $1 96 भी ब्रीच कर गया है। तो व्हाट आर सम ऑफ द रीजंस? तो वन ऑफ द थिंग इज, फॉर एग्जांपल इफ वी सी, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है, लेट अस इमेजिन $1 इज इक्वल टू ₹100, ऑलराइट, एंड देन यहां से मूवमेंट इज $1 इज इक्वल टू ₹110, एंड यहां से द मूवमेंट इज $1 इज इक्वल टू ₹90। So this is called as कि rupee is depreciating। ठीक है, rupee is depreciating।
and this is called as rupee is appreciating vis-a-vis डॉलर। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है? डॉलर महंगा हो रहा है, ऑलराइट, डॉलर महंगा हो रहा है इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन। व्हाई इट विल हैपन? यहाँ पे क्या हो सकता है कि देयर इज scarcity of dollar, scarcity of dollar, which may be due to outflow of dollar, outflow of dollar, or another way is there is huge demand for dollars। जिसकी ज्यादा डिमांड उसकी प्राइसेस बढ़ जाती। देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर डॉलर्स, ठीक है। इफ यू सी इन द रिसेंट टाइम्स, राइट, दो स्पेशली द वेस्ट एशिया क्राइसिस जो अभी चल रही है, वॉर बिटवीन यूएसए एंड ईरान, है ना, तो उस वजह से पीपल आर नाउ होल्डिंग ऑन टू द डॉलर्स, दे आर डिमांडिंग मोर डॉलर्स। तो इंडिया के केस में व्हाट इज हैपनिंग इज, पहला क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो जो इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन क्लोज टू 90% ऑन द क्रूड ऑयल फॉर देयर ऑयल रिक्वायरमेंट, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो डॉलर आउटगो ज्यादा हो गया, डॉलर आउटगो ज्यादा हो गया। सिमिलरली अनदर फैक्टर इज कि गोल्ड के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, एंड वी इम्पोर्ट क्लोज टू 100% ऑफ द गोल्ड। इंडिया में कोई गोल्ड होता नहीं है, जो भी आप ज्वेलरी वगैरह के लिए यूज करते हो बाहर सारा, ऑलमोस्ट सारा बाहर से मंगाते हो, और उसकी प्राइसेस भी बढ़ गई है। तो देन आउटगो अगेन हैज इंक्रीज डॉलर का। सिमिलरली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ऑलवेज इन द केस ऑफ क्राइसिस, जब भी क्राइसिस आती है, दे वांट टू टेक देयर मनी टू द सेफ इन्वेस्टमेंट। अभी क्या हो रहा है इंडिया में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआई है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, इक्विटी में पैसे लगा के रखे थे इंडिया में, नाउ दे आर टेकिंग दिस मनी एंड दे आर मूविंग टू सेफर डेस्टिनेशंस, लेट अस से यूएसए एटसेट्रा। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, वो अपना फॉरेक्स निकाल रहे हैं, एंड नाउ दे आर टेकिंग दैट मनी। तो वहां पे भी इस केस में डॉलर का आउटगो हो रहा है। Another crucial aspect is what we have seen in the last few months is that there has been a policy shift from the RBI case। तो जैसे इंडिया में what happens is, जब हम फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम की बात करते हैं इंडिया में, तो we say that it is managed floating exchange rate। तो अर्लियर जब भी बहुत ज्यादा रुपी गिरने लगता था, डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन मोर, तो आरबीआई कम्स टू द रेस्क्यू, ठीक है, एंड दे ट्राई टू ब्रिंग इन मोर डॉलर्स, क्योंकि डॉलर स्कार्स है, इसीलिए प्राइसेस रुपी डॉलर की प्राइसेस बढ़ रही है। तो डॉलर सेल कर देता था इकोनॉमी में, सो दैट टू रिस्टोर द प्राइसेस ऑफ रुपी। बट अभी क्या है, व्हाट आरबीआई सेज दैट दे आर नॉट टारगेटिंग any rupee value, ठीक है, दे आर ओनली देयर टू स्मूथन आउट एनी वोलेटिलिटी इज देयर, ठीक है। तो अभी कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी लेवल पे मेंटेन करना चाहते हैं कि नहीं 84 से 87 हो गया, 87 से 90 हो गया, तो अब इसके नीचे नहीं जाने देंगे, ऐसा पॉलिसी में नहीं है। दे आर जस्ट सेइंग दैट वी विल वॉच एंड इफ देयर इज एनी लार्ज स्केल वोलेटिलिटी तो वी विल एंटर एंड विल से। तो एक ये भी पॉलिसी शिफ्ट देखा गया है कि आरबीआई इज नॉट ट्राइंग टू मेंटेन रुपी एट ए सर्टेन लेवल, तो इसलिए लिमिटेड इंटरवेंशन हो गया है आरबीआई का। तो इस वजह से भी जो डॉलर मतलब आरबीआई सेल करता था इकोनॉमी में, दैट हैज बीन लेस। तो मोर एंड मोर डॉलर का आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो कम हो रहा है। इनफ्लो कब आएगा? फॉर एग्जांपल जैसे एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट भी थोड़े से हमारे उतने कॉम्पिटिटिव नहीं है, एंड प्लस सिंस वी आर हैविंग टेंशंस विद यूएसए, उनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी भी उतनी तरीके से सही नहीं हो पाया है, एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट टू देम। तो एक ये भी है कि एक्सपोर्ट हमारा उतना तरीके से बढ़ नहीं रहा है, तो जो इनकमिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही है, बट आउटगो तो कंटिन्यूअसली हुए जा रहा है। तो दैट इज व्हाई वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट ऑफ दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, ठीक है। नाउ व्हेन द रुपी डेप्रिसिएट, तो कुछ लोगों पे पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, सर्टेन सेक्टर विल एंजॉय डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, एंड ऑन सम सेक्टर्स, ऑन सम इंडिविजुअल्स नेगेटिव इंपैक्ट होगा। जैसे पॉजिटिव इंपैक्ट कब हम बोलेंगे कि जब डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी होता है तो एक्सपोर्ट में बिकम कॉम्पिटिटिव। जो
फॉरेन एक्सचेंज अर्नर हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, दो सेक्टर्स विच एंजॉय एक्सपोर्टिंग थिंग्स, उनके लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा. वाई? बिकॉज depreciation of rupee will increase the export competitiveness in the international market. ठीक है, तो जैसे हमारा आईटी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जो भी सेक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उनके लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा. अनदर इज इट विल बूस्ट फॉरेन टूरिज्म इन इंडिया. वन ऑफ द वे टू बूस्ट फॉरेन टूरिज्म. ऐसा नहीं है कि अगर रुपया गिरेगा तो सब लोग आ ही जाएंगे, बिकॉज देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन्वॉल्व, नो. तो बट इट में बूस्ट द फॉरेन टूरिज्म इन इंडिया, बिकॉज अब वो $1 खर्च करेंगे इंडिया में, तो इट विल हैव मोर वैल्यू. पहले ₹100 था, अब 110 वैल्यू है, तो दे में कम. ठीक है. सिमिलरली रिमिटेंसेज में इंक्रीज. जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं, दे में सेंड मोर रिमिटेंसेज टू इंडिया. ठीक है. एंड देन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज, बिकॉज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीजेस एंड इम्पोर्ट्स विल बिकम कॉस्टलियर. तो कुछ हम चाहेंगे कि चीजें इंडिया में बने, तो में इंक्रीज. ऐसा नहीं है कि इट विल बी सर्टेन, बिकॉज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट विल इन्वॉल्व अदर फैक्टर्स, की पॉलिसी सूटेबल है कि नहीं है, अदर फैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, वो सारे फैक्टर भी लगेंगे. बट वन ऑफ द वे यू कैन से दैट इट मे इंक्रीज. ठीक है. नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करेंगे तो इम्पोर्ट्स विल बिकम कॉस्टलियर. अर्लियर आप $1 देना था आपको, यू आर पेइंग ₹100. नाउ depreciation के बाद to buy that $1 you have to pay ₹110. So imports will become costlier. तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखो कि ऐसा नहीं सोचना कि सर अगर इंपोर्ट कॉस्टलियर हो रहा है तो हम इंपोर्ट कम कर देंगे. अप टू अ सर्टेन लेवल आप थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो, अदरवाइज जो इंपोर्ट बास्केट है इंडिया का, मोर और लेस इन इलास्टिक है. उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं. आप क्रूड ऑयल बंद नहीं कर दोगे इंपोर्ट करना कि थोड़े से प्राइसेस बढ़ गए. ठीक है. तो दैट इज व्हाट कि इंपोर्ट बास्केट इज यूजली इन इलास्टिक ना. द डिमांड रहेगी ही रहेगी, इवन इफ प्राइसेस आर इंक्रीजिंग. देन इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग फॉरेन डिनोमिनेटेड डेट. तो वो बढ़ जाएगा अगर आप फॉरेन करेंसी में लोन लिया, बिकॉज फॉरेन करेंसी में दिया तो आपको इंटरेस्ट भी एंड प्रिंसिपल अमाउंट भी फॉरेन करेंसी में रिटर्न करना है. तो अर्लियर लेट अस से आपने $1 का इंटरेस्ट जा रहा है पर मंथ, तो $1 लेने के लिए आई वॉज स्पेंडिंग ₹100 इन द मार्केट, बट नाउ आई हैव टू स्पेंड 110 इन द मार्केट. तो ये बात कर रहे हैं. इन्फ्लेशन में इंक्रीज, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जा रहा है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो जा रहा है. करंट अकाउंट डेफिसिट में इंक्रीज, ये एक अनदर पॉसिबिलिटी है अगर चीजें हो रही है. एडवर्स रेटिंग बाय सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा है, हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होंगे वो थोड़े से वीक हो जाएंगे. तो जो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, दे में गिव एडवर्स रेटिंग, फेवरेबल रेटिंग नहीं देंगी. एंड सीइंग दिस देयर मे बी अ डिक्लाइन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो ये थोड़ी सी चीजें आप ध्यान रखो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी. Another important topic is additional tier 1 bond, which has been very much in news. Right. So it was in the news because it came into the light that जो SDFC बैंक थे, especially the West Asia का जो branch था, there few officials of the SDFC bank, they have sold the Credit Suisse का जो 81 bonds था to some investors. ठीक है, टू सम इन्वेस्टर्स, सेइंग दैट इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शंस टू इन्वेस्ट. ठीक है. बट जब 2023 में क्रेडिट स्विस पूरा खत्म हो गया तो उसके 81 बॉन्ड्स भी खत्म हो गए, बिकॉज इट वाज इशूड बाय 81 बॉन्ड्स. अब क्रेडिट स्विस ही खत्म हो गया, राइट, क्रेडिट स्विस बैंक वो ही खत्म हो गया. एंड देन व्हाट हैपेंड इज द इन्वेस्टमेंट which has been done by the investors in 81 bond, citing कि they are one of the safest thing to invest. तो उनका सारा पैसा लॉस हो गया, and that came into the light in 2025, and because of that the chairman of SDFC resigned, and several other people were asked to resign from the SDFC. तो उस केस में 81 bonds has come into news. तो कुछ यूनिक फीचर होते हैं 81 बॉन्ड्स में, वो देख लेंगे. एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स. तो बैकग्राउंड क्या है कि आफ्टर 2008 इकोनॉमिक क्राइसिस, जब बेसल 3 नॉर्म्स आए, तो वहां पे एक था कि 81 बॉन्ड्स वाज देयर इंट्रोड्यूस्ड. एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज द रिस्क एपेटाइट और रिस्क कैपेसिटी ऑफ द बैंक, कि हाँ
these are the bonds which may be used during the risk scenario or risk period. ठीक है. Some unique features जो AT1 bonds की which you should know, that one of the key feature is there is no maturity date. There is no maturity date. That is why they are called as perpetual bond. तो issue तो कर देते हैं बट एंड डेट कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, नहीं कंटिन्यू रहते. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इन केस ऑफ नॉर्मल बॉन्ड्स. ठीक है. अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बॉन्ड इशू करके लोन लिया हुआ है तो एट एवरी मोमेंट दे आर ऑब्लाइज्ड की जो भी रेगुलर इंटरेस्ट जाना है इन्वेस्टर्स को दे आर पेइंग, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द टेन्योर, बॉन्ड का टेन्योर जब एंड हो जा रहा है, दे शुड गिव द प्रिंसिपल अमाउंट. यहाँ पे जो नॉर्मल बॉन्ड में होता है कि एनी मोमेंट अगर कभी भी आप मिस करते हो अपना इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, तो तुरंत ही आप बैंकरप्ट घोषित हो जाते हो. तो नो वे यू कैन मिस योर इंटरेस्ट पेमेंट टू द इन्वेस्टर्स ऑफ द बॉन्ड. बट यहाँ पे नो, बैंक में साइड दैट वी आर नॉट हैविंग अ गुड सिनेरियो, मेरा कैपिटल एक लेवल से नीचे चला गया है एंड वी आर डिसाइडिंग टू नॉट गिव द इंटरेस्ट टू द AT1 बॉन्ड इन्वेस्टर्स. तो ये भी एक यूनिक फीचर होता है कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस बैंक में रिफ्यूज कि अभी हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट इन सेवरल सिचुएशंस बैंक में राइट डाउन द AT1 बॉन्ड्स की खत्म हो गए, अब कुछ भी नहीं, आपके पैसे खत्म. ऑलराइट, वी हैव रिटन डाउन द बॉन्ड्स. ठीक है, वी आर फेसिंग डिफिकल्टीज, हमें रिस्क एब्जॉर्ब करना है एंड उसके लिए वी आर राइटिंग डाउन दिस AT1 बॉन्ड्स. तो ये भी हो सकता है. और दीज बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रिफर्ड शेयर्स और कॉमन स्टॉक इक्विटी. तो ये भी कर सकता है कि बॉन्ड को कॉमन इक्विटी या इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल इन केस ऑफ AT1 बॉन्ड्स इफ द बैंक्स आर फेसिंग डिफिकल्टीज. ठीक है. Overall, if you see that no risk involved in AT1 bonds are high. That is why they offer high interest rate. That is why certain no people who have very high risk appetite, they try to invest in the AT1 bonds. Okay. तो ये these are the few things which you need to keep in mind. अब यहीं पे AT1 bonds ये फिगर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो इंडिया में रिस्क वेटेड एसेट्स है, जो रेगुलेटरी कैपिटल है, जो आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है, वो क्या क्या है. दिस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई बेस्ड ऑन बेसल 3 गाइडलाइंस. तो यहाँ पे मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो 5.5% है. कैपिटल कंजर्वेशन बफर 2.5% है. ऑलराइट, एडिशनल टीयर 1 कैपिटल इज 1.5%. यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो टोटल मिनिमम कैपिटल इंक्लूडिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर है दैट इज 9.5%. 9.5%. ये ध्यान रखिएगा कि मिनिमम टीयर 1 कैपिटल जो प्रिस्क्राइब करता है आरबीआई अंडर बेसल 3 नॉर्म्स. ठीक है, तो वो 1% हाइयर रहता है विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बेसल 3. जब आप टीयर 2 की बात करते हैं तो टीयर 2 2% है. एंड देन मिनिमम टोटल कैपिटल रेशियो, जो टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड है इंक्लूडिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर, दैट इज 11.5%. तो काइंडली रिमेंबर दीज नंबर्स. ठीक है. ऑलराइट, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट. टैक्स एंड डीजल के प्राइसेस पे काफी रहा है, अभी बढ़ गया है. फ्यू दिन पहले टैक्सेस में डीजल और उसमें टैक्सेस कम कर दिए थे सरकार ने, इवन दो द फाइनल प्राइस वाज नॉट चेंज, बट उसमें कम कर दिए थे. तो द फ्यू थिंग्स ऑन प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, हाउ इट इज कैलकुलेटेड इन इंडिया. तो वन थिंग जो आपको सबसे पहले ध्यान रखिए है कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ द जीएसटी. तो जीएसटी अप्लाई नहीं होता है डीजल एंड पेट्रोल में. दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू अप्लाई. सेकेंड थिंग इज बोथ सेंटर एंड स्टेट अप्लाई देयर टैक्सेस ऑन द डीजल एंड पेट्रोल. तो अब उसको कैसे करते हैं एक बार देख लेंगे. तो 4 टियर रहता है. फॉर एग्जांपल जैसे बेसिक प्राइस है, बेसिक प्राइस है इट इज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल प्राइस. की इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ रहा होगा तो जो हमारी बेसिक प्राइस है वो बढ़ जाएगी. उस पे एक्साइज ड्यूटी लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्साइज ड्यूटी लगाती है. यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, द एक्साइज ड्यूटी विच इज implemented
बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, जो वो होता है दैट इज फिक्स्ड अमाउंट पर लीटर अक्रॉस कंट्री। तो एंटायर कंट्री के लिए वो जो नंबर होता है वो फिक्स होता है व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट इज यूटिलाइजिंग द एक्साइज ड्यूटी। जो भी एक्साइज ड्यूटी उस पर लगा रही होगी दैट विल बी फिक्स्ड फॉर अक्रॉस द कंट्री। महाराष्ट्र के लिए भी वही है, यूपी के लिए भी वही है, बिहार के एंटायर कंट्री के लिए वो है, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट फिर वैल्यू एडेड टैक्स या सेल्स टैक्स लगाती है, ठीक है। बट ये जो परसेंटेज होता है दैट कैन वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इसीलिए आप ये देखते हो कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। व्हाई इट इज देयर? because of the variations in value added tax and sales tax. And then there is something called as the dealer commission, क्योंकि I know oil marketing companies will incentivize the people who are having the पेट्रोल, उनको प्रॉफिट कहां से निकलेगा, तो डीलर कमीशन रहता है कुछ के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड मार्जिन फॉर पंप ओनर्स। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जो टैक्स ऑन डीजल एंड पेट्रोल है। फॉर एग्जांपल जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, एक बार ध्यान से लेंगे, जब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट तो उनका क्या टैक्स लगता है पेट्रोल और डीजल पे? तो पहला होता है बेसिक एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। देन स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, फ्यू मंथ्स बैक यही 10% कम कर दिया गया था, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। एंड देन वी हैव एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, एंड देन एडिशनल एक्साइज ड्यूटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ठीक है। तो ये these are the heads of taxes imposed by central government on diesel and petrol, ठीक है, on diesel and petrol। ये सबके लिए इंटायर कंट्री के लिए सेम रहता है, इंटायर कंट्री के लिए ये सेम रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखिए कि इंटायर कंट्री के लिए ये सेम रहता है। इसके बाद जब स्टेट्स लगाता है, जब स्टेट किस पे लगाता है, नो बेसिक प्राइसेस आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एंटायर एक्साइज ड्यूटी लगा दी, फ्रीट चार्जेस लगा दिए, प्लस डीलर के कमीशन लगा दिए, इन सब के ऊपर नाउ अब स्टेट्स अपना वैल्यू एडेड टैक्स लगाता है विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट्स, एंड दैट इज व्हाई पेट्रोल प्राइसेस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टेट्स, राइट। तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान में रखिए। Another very important thing which has been in the news was related with the payment and small finance bank। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे थी, जैसे नो फिनो पेमेंट बैंक, इट बिकेम द फर्स्ट पेमेंट बैंक टू गेट आरबीआई नॉट टू बिकम अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो पहला पेमेंट बैंक था जो पेमेंट बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक कन्वर्ट हो गया है। दूसरा, आरबीआई ग्रांट्स एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट, अ यूनिवर्सल लाइसेंस, ठीक है। तो जैसे ऑन वन हैंड वी हैव यूनिवर्सल बैंक, एंड on other side we have differentiated banks, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स और यूनिवर्सल बैंक में क्या डिफरेंस होगा कि यूनिवर्सल बैंक स्कोप बहुत ज्यादा है, एरिया जो आप कवर कर रहे हो दैट इज वेरी मच, यहां पे है। डिफरेंशिएटेड बैंक्स में वही कम हो जाता है कि स्कोप ऑफ वर्क इज लिमिटेड, आप कुछ ही चीजों को कर पा रहे हो और कुछ ही एरिया को सर्विस कर पा रहे हो। डिफरेंशिएटेड बैंक का एग्जांपल्स आर पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसको नीश बैंक बोलते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसी में रीजनल रूरल बैंक एक्सेट्रा आ सकते हैं, फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो यही हुआ है कि पेमेंट बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला कौन बना है? फिनो पेमेंट बैंक। एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक कौन बना है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अनदर न्यूज वाज देयर दैट इन केस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, आरबीआई हैज लोवर्ड द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट। अर्लियर स्मॉल फाइनेंस बैंक का 75% था, नाउ इट हैज बीन लोवर्ड टू 60%। तो ये कुछ न्यूज में थी चीजें जो पेमेंट बैंक से रिलेटेड है, दैट इज वाई नो
पेमेंट बैंक क्या होते हैं, व्हाट आर द थिंग्स, वो इंपॉर्टेंट हो गया. फॉर एग्जांपल अगर पेमेंट बैंक की बात करें तो दे हैव बीन established based on the committee recommendation, that is Nachiket More committee recommendation 2014 में recommend किया था, and after that 2016 से RBI has issued licenses to payment bank and small finance bank. तो नचिकेत मोर कमिटी ने पेमेंट बैंक के लिए भी रिकमेंडेशन दी थी एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी रिकमेंडेशन दी थी. तो पेमेंट बैंक्स दे आर हैविंग अ डिफरेंशिएटेड बैंक, niche बैंक है, they are allowed to do certain activities and they are not allowed to do other activities. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे डिपॉजिट्स की बात करें तो खाली डिमांड डिपॉजिट्स दे आर अलाउड, ओनली डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट नहीं कर सकते, एनआरआई डिपॉजिट्स नहीं कर सकते. ठीक है. और जो डिपॉजिट्स अमाउंट है टोटल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 लाख रुपीज, यही रख सकते हैं. अर्लियर इट वाज 1 लाख, नाउ इट हैज बीन रिवाइज्ड अपवर्ड्स, दैट इज 2 लाख रुपीज. यहाँ पे डिपॉजिट इंश्योरेंस अवेलेबल है, जो जनरल बैंक के लिए 5 लाख रुपीज है, यहाँ पे बिकॉज 2 लाख ही रख सकते हैं, तो 2 लाख पे आपको डिपॉजिट इंश्योरेंस मिलता है. दे कैन इशू डेबिट कार्ड्स, बट रिमेंबर दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड, बिकॉज वो लेंड ही नहीं कर सकते, दे कैन नॉट लेंड. सो अगर लेंड नहीं कर सकते तो क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते, बिकॉज क्रेडिट कार्ड इज सिमिलर टू लेंडिंग. आप अभी खरीदते हो और आफ्टर सर्टेन टाइम यू हैव टू गिव द पेमेंट. ठीक है. दे प्रोवाइड रेमिटेंसेस सर्विसेज, मोबाइल पेमेंट ट्रांसफर्स, नेट बैंकिंग, थर्ड पार्टी ट्रांसफर, ये सारी चीज कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी लोन्स, एक्ट एज बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट फॉर अदर बैंक्स, ये सारी चीजें वो कर सकते हैं कि अदर बैंक के लिए दे कैन एक्ट एज ए बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट. Minimum 75% of the fund to be invested in government securities with maturity up to 1 year. ये भी उनको करना है, बहुत रिस्की चीज में आप नहीं कर सकते. 75% आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल के रखना है जिसकी मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर है. कैन नॉट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट, एनआरआई डिपॉजिट से नहीं कर सकते. दे कैन नॉट लेंड, दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड, राइट. ऑल्सो दे कैन नॉट एस्टेब्लिश सब्सिडरीज टू इंगेज इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो आपने एक सब्सिडरी बना लिया, जो चीज नहीं कर पा रहे थे वो सब्सिडरी के थ्रू करवा रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते. दिस इज रिलेटेड विद पेमेंट बैंक. सिमिलरली स्मॉल फाइनेंस बैंक. ठीक है. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक यू कैन से दैट दीज आर द काइंड ऑफ जनरल यूनिवर्सल बैंक विथ लिमिटेड स्कोप. ऑलराइट. यूजली जो यूनिवर्सल बैंक चीजें कर सकती हैं, मोस्ट ऑफ देम they can be done by small finance bank, but at a very lower level. ठीक है. तो जैसे डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट दोनों तरह के डिपॉजिट रख सकते हैं. डिपॉजिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो वहां पे 2 लाख रुपीज था. डिपॉजिट इंश्योरेंस इज अवेलेबल. लेंडिंग कर सकते हैं, मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों दे सकते हैं, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि फोकस इज ऑन स्मॉल वैल्यू लेंडिंग. ऐसा नहीं है कि सारा पैसा आप एक बड़े कॉर्पोरेट्स को दे दिया, ऐसा नहीं है. इशू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड. It provide remittances services similar to payment bank, mobile payment, transfers, purchases, net banking, third-party transfers. Distribute products such as mutual funds, insurance and third-party loan, जो payment bank भी कर सकता है. ठीक है. यहाँ पे नॉट अलाउड एक्टिविटीज में अगर देखो तो नो लार्ज कॉर्पोरेट लेंडिंग, ये स्मॉल वैल्यू लेंडिंग करना है आपको. ठीक है. नॉट अलाउड टू सेट अप सब्सिडरीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज. एक जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखिए, दे कैन नॉट बी अ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट टू अनदर बैंक. ठीक है. पेमेंट बैंक में दे कैन एक्ट एज ए बिजनेस करेस्पॉन्डेंट फॉर अनदर बैंक, बट यहाँ पे दे कैन नॉट एक्ट एज ए बिजनेस करेस्पॉन्डेंट फॉर अनदर बैंक. ऑलराइट. हाउएवर दे कैन हैव देयर ओन बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नेटवर्क. तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखिएगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक. मूविंग ऑन. सो मिस सेलिंग बाय बैंक्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा है. फॉर एग्जाम्पल जैसे 81 बॉन्ड्स थे, द इशू ऑफ 81 बॉन्ड्स विच हैज बीन सोल्ड बाय एचडीएफसी बैंक इन द बहरेन ब्रांच, दुबई ब्रांच एटसेट्रा. तो वो भी एक काइंड ऑफ मिस सेलिंग था. तो मिस सेलिंग क्या होता है, वो बैंक्स करता है. यूजली जब आप बैंक्स में जाते हो चीजें करते हो तो कई बार बैंक ट्राइज टू सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स विदाउट एक्सप्लेनिंग यू ऑल द थिंग्स. पूरा इंफॉर्मेशन नहीं रहता है आपके पास, या आपकी रिस्क एपेटाइट कुछ दूसरी है और आप उन्होंने जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं वो समथिंग अलग है. तो यू आर बाइंग द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बैंक्स. तो वही वर्ड यूज होता है कि मिस सेलिंग कर रहे हैं बैंक्स. ठीक है.
मिस सेलिंग कर रहे हैं बैंक्स, ठीक है। जैसे मिस सेलिंग का मतलब, जैसे आपने देखो कि व्हाट डिड द वेस्ट एशियन ब्रांच ऑफ द एचडीएफसी डू, दे सेड दैट जो इन्वेस्टर्स थे उनका लो रिस्क एपेटाइट था, उन्होंने बोल दिया कि AT1 बॉन्ड विच इज वन ऑफ द वेरी हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट, उससे बोल दिया कि सर आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर दो बिकॉज इट कंटेन्स वेरी लो रिस्क। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ मिस सेलिंग बाय द बैंक्स। सिमिलरली कई बार आप जब क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो बैंक से, तो बैंक बोलता है कि ये तभी मिलेगा जब आप फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए, तो किसी के बदले कुछ कर दीजिए, जो कि ऐसा कुछ है नहीं। ऑलराइट, कई बार आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो, बोलता है कि सर ये इस पे कोई चार्जेस नहीं लगेगा, फिर आप ले लेते हो तो पता लगता है कि फर्स्ट ईयर फ्री था, उसके बाद से चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है। कई बार जो टोटल कॉस्ट होती है वो हिडन होती है कि सर इस साल ये कॉस्ट होगी, नेक्स्ट ईयर अलग कॉस्ट होगी, ये नहीं पता है आपको। तो कई बार वो पूरा जो हिडन फीस रहता है वो आपसे नहीं बताते हैं एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन, ड्रिप प्राइसिंग जो बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिस सेलिंग बाय द बैंक्स, यू आर सेलिंग द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू द इन्वेस्टर्स विदाउट टेलिंग द प्रॉपर पिक्चर, ठीक है। तो ये होता है, दैट इज द मिस सेलिंग बाय द बैंक। सो आवर फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो सेड दैट it is a, bank should not do the mis-sellings to the customers. All right, so these are the important current affairs, you can say, which is very relevant for the upcoming prelims examination. So thank you everyone, I will see you in the next video. Thank you.